شخص کے لیے تو فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہوتا ہی وہ ہے جو سب کے لیے لازم نہ ہو، لیکن ہر دور میں ہر علاقے سے، ہر دیہات، ہر قریہ، بستی، شہر، ملک سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس علم میں مہارت حاصل کریں اور پھر آگے دوسرے لوگوں کو سکھلائیں۔ اور جو عام لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے اتنے قواعد کا سیکھنا یہ ضروری ہے جن قواعد کی روشنی میں وہ قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ وہ لہنے جلی سے بچ سکیں کم از کم۔ تو جو شخص اس کی تعلیم دینا چاہتا ہے یا دے رہا ہے، اس کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ ان قواعد میں اچھی طرح مہارت رکھتا ہو۔ قواعد تجوید ہو، اور اوقاف کی جو اقسام ہیں کیفیت وقف کے اعتبار سے اور محل وقف کے اعتبار سے کم از کم یہ، اور اس کے علاوہ بھی وقف کی اور بھی اقسام ہیں، اور اس طرح اس کو کچھ نہ کچھ رسم کے حوالے سے بھی علم ہونا چاہیے، کون سے کلمات کہاں کیسے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ تو اب جن لوگوں کو آگے تعلیم دینی ہوتی ہے وہ عموماً 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ابتدائی ابھی بچے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوتا ہے، ان کی ادائیگی کچھ تو ٹھیک ہوتی ہے اور کچھ اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، قرآن جو ہے انہوں نے پڑھ لیا جیسے کیسے بھی، اب پڑھتے پڑھتے ان کی زبان جو ہے وہ اب بعض غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے، یا ان کی زبان پہ وہ غلطیاں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے لیے ان کو ٹھیک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان 3 کیٹیگری کے لوگوں کو یہ تجوید کے قواعد پڑھانے اور عملی تجوید یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھانے میں طریقے جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، سب کو ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ جو ابتدائی بچے ہیں جنہوں نے ابھی قرآن مجید شروع کرنا ہے یا کوئی قاعدہ جو ہے وہ ابھی شروع کرنا ہے، تو ان کو ایک پڑھانے کا طریقہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے بچوں کو غلط پڑھاتے ہیں خود ہی، اور بعد میں پھر اس کو ٹھیک کرانے بیٹھ جاتے ہیں۔ غلط پڑھ پڑھ کے وہ پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم اس کو ٹھیک کرانے پہ لگ جاتے ہیں۔ اب وہ ٹھیک کرانے والا، صحیح کرنے والا بھی پریشان ہے، اور جس بچے نے جس کو ٹھیک کرایا جا رہا ہے وہ بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، پہلے ہم نے جیسے پڑھا تھا تو وہ کیا ہم نے غلط پڑھا تھا۔ تو اگر ابتدا ہی سے اس چیز کا لحاظ رکھا جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کو بعد میں باقاعدہ تجوید کا کورس کروانے کی ضرورت ہوگی۔ مثلا قاعدہ کوئی بھی ہو، آج کل تو قاعدے بھی بے شمار ہیں نا، کوئی تجویدی قاعدہ ہے، کوئی نورانی قاعدہ ہے، کوئی اقرا قاعدہ ہے، جو بھی ہو قاعدہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جتنا بھی اچھا ہو، جتنے بھی اس کے ساتھ قاعدے لکھ دیے جائیں، تجوید کے قواعد ساتھ ہر تختی کے ساتھ لکھ دیے جائیں، یا اس کے ساتھ قواعد نہ لکھے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے پڑھانے والے سے کہ پڑھانے والا کیسا ہے۔ پہلی تختی ہوتی ہے مفردات کی، حروف تہجی یا حروف ہجا اس کو کہہ دیتے ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ اب اس کو پڑھانے کا ایک انداز ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ہی پڑھانا ہے، لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے اور سیدھا سیدھا ان کو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، الف با تا سا جیم
बस। अब बच्चे को 2 हरफ दे दिए हैं, वो सारा दिन जो है वो अलिफ बा ता सा जैसे उसकी जबान से निकल रहा है वो पढ़े जा रहा है। हालांकि उस बच्चे को कुछ पता नहीं है कि ये अलिफ जो है इसकी आवाज कैसी है, और बा जो लिखा है उसके सामने उसकी आवाज बा है या ता है। जीम की आवाज हा निकालनी है या खा निकालनी है हमें नहीं बताना है। जब उसको ये बता दिया है कि इसकी आवाज बा है, बा मुवहिदा जिसको कहते हैं, बा मुवहिदा यानी एक नुक्ते वाली बा, और सा मुसल्लिसा यानी 3 नुक्ते जिसके ऊपर होते हैं, क्योंकि शुरू में कुरान जब नाज़िल हुआ तो ये नुक्ते वगैरह नहीं थे ना, ये हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में लगाया गया है। तो बा ता सा ये नुक्ते और बगैर नुक्ते वाले हरफों के दरमियान फ़र्क कैसे करते थे, तो बा को कहा जाता था बा मुवहिदा, और सा के 3 नुक्ते उसको बोलते हैं सा मुसल्लिसा, और ता के 2 नुक्ते हैं तो उसको कहते हैं ता फौकिया, और या के 2 नुक्ते वो नीचे हैं तो या तहतिया, और जिसका नुक्ता नहीं होता उसको कहते मुहमला, और जिसका नुक्ता होता उसको कहते हैं मुअजमा। अब बच्चे को जब हम पढ़ाने लगे हैं तो उसको बताएंगे ये बा है, उसके बाद आ रही है ता। अब बच्चे को नहीं पता कि ये ता है और ये बा है, हमने उसको बताना है कि इसकी आवाज ता निकालनी है, तो उसको उसी वक्त ही पढ़ाते वक्त ही उसकी आवाज बारीक बताई जाए उसको ता, क्योंकि आगे तो आ रही है। अब जब बच्चे को पता ही नहीं था तो आपने आपने बताया तो उसको पता चला कि ये ता है, तो आप ता की आवाज उसको सुनाते वक्त ही उसी तरह की आवाज सुनाए उसको जिस तरह उस हरफ ने पढ़ा जाना है, तो बच्चा पहले दिन से उसी तरह ही उसकी अदायगी करेगा। और साथ ही उसको पढ़ाते वक्त कि उसको खींचना कितना है, जब उसके ऊपर हरकत है या नहीं है, या हरकत तो है लेकिन उसके साथ हरफे मद्दा नहीं लगा हुआ, तो अब उस हरफे मद्दा जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसकी आवाज कितनी सी निकालनी है उसको उतना ही नहीं पढ़ाया जाए। मतलब जब हरकत वाली तख्ती पे पहुंच जाते हैं, हरकत वाली तख्ती से पहले तमाम हरूफ को उसी अंदाज से ही उसको पढ़ाया जाए कि जो मोटे हरफ हैं उनकी आवाज उनको पहले दिन से ही मोटी बताई जाए। छोटे बच्चे को अगर आप कहेंगे ना कि ऐसे आवाज मुंह भर के आवाज निकालो तो वो निकाल लेगा, और जो हर बारीक है उन हरफों को बारीक ही कहा जाए। तो ये जो इब्तदाई चीजें होती हैं वो हर तख्ती के साथ साथ ही उसको अगर बता दी जाए तो वो बच्चा उसी के मुताबिक ही पढ़ेगा, अगरचे 1-2 दिन ज्यादा लग जाए, वक्त उतना ही लगेगा। अगर एक दफा वैसे उसको पढ़ा दें और फिर जल्दी पढ़ लेगा वो बच्चा, फिर उसको ठीक कराने पे फिर कुछ दिन लगेंगे और फिर मुश्किल भी पेश आएगी। तो इसलिए इस मुश्किल से बचने के लिए हर तख्ती को पढ़ाते वक्त उसके अंदर जो कवायद हैं उसको मलहूज़ खातर रखा जाए कि इब्तदा से ही हरूफ की अदायगी उसी तरह ही करवाई जाए जिस तरह वो हरूफ अदा होते हैं। इसी तरह ही फिर हरकत जो होती है, हरकत की अदायगी में भी गलती होती है, पहले उसको जो उल्टा सीधे जो है वो पढ़ा देते हैं, या फिर हरकत पढ़ाते वक्त ये नहीं बताते कि इसके साथ हरफ मद्दा लगे हों। अगर हरफ मद्दा नहीं लगे हैं तो कैसे पढ़ना है, और नहीं लगे हैं तो कैसे पढ़ना है। अब बच्चे को तो नहीं पता होगा कि हरफ मद्दा क्या होते हैं, पढ़ाते वक्त तो उसको आवाज ही उतनी बताई जाए कि बा जबर बा, ता जबर ता। अगर आप उसको पढ़ाएं बा जबर बा, खुद ही खींच दिया, या गलती से उसने खींच दिया, उसको रोका नहीं है, तो उसी तरह पक्का कर लेगा। अब वो जब पढ़ेगा तो इस तरह की गलतियां जो है वो बेजा करता जाएगा। तो बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, बा जेर बी, ता जेर ती, बा पेश बू। अगर थोड़ा सा लंबा कर दिया बा पेश बू तो ये गलत हो जाएगा ना। वो फिर देखेगा जहां कहीं पेश आ रही है ना उसको खींच के ही पड़ेगा, तो फिर वो ज्यादती हो जाएगी हल्कों में। इस तरह जो है ये बच्चों को इब्तदाई से इसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए जिस तरह क़वाइद तजवीज़ के मुताबिक पढ़ाया जाता है, और फिर उसको एक एक कायदा एक एक चीज साथ जो है वो बताते जाए।
एकदम सारी चीजें याद नहीं करवानी है। मोटे हरफों का बता दिया गया है कि ये मोटे हरफ हैं। पहली तख्ती में इतना ही बता दिया जाए कि ये मोटे हरफ हैं और ये इनकी आवाज मोटी लकड़ी है। अगर वहां पे ये बता दिया जाए कि यहाँ पे ये हरफ, पढ़ाने में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एकदम सारी चीजें नहीं बतानी है। इब्तदा में मोटे हरफ वो बताए जाए, बाद में फिर सीटी वाले जो हरफ हैं उनकी वो बता दिया कि यहाँ पे इन हरफों को सीटी के साथ पढ़ना है। अब हुर्फ कलकला वहां से छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां पे कलकला का ताल्लुक नहीं है। तो कलकला जो है वो आगे जब हरफ साकिन आएंगे तो वहां पे जाके बताया जाए कि इन हरफों को कलकला के साथ पढ़ना है। तो इसी तरह ही हर तख्ती के कवायद के मुताबिक उसको जो है वो पढ़ाया जाए। तो जब वो एक कायदा जो है इब्तदाई सही तजवीज़ के मुताबिक पढ़ लेगा तो कुरान मजीद जब पढ़ना शुरू करेगा ना तो वो नादा तो खुद ब खुद ही पढ़ना शुरू कर देगा, और काफ़ी सारी तजवीज़ की गलतियां जो हैं वो इब्तदा से ही ठीक हो चुकी होंगी। अब इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, अब वो नादरा तो पढ़ चुके हैं, कायदा तो उन्होंने पढ़ लिया है, अब उनका क्या किया जाए, उनको कैसे पढ़ाना है, कहाँ से शुरू, समझ नहीं आ रही होती कि इनको कहाँ से ठीक कराना शुरू करें और क्या छोड़ें और क्या ना छोड़ें। तो ऐसे लोगों के लिए ये करना चाहिए कि पहले गौर करें कि वो ज्यादा गलतियां किस चीज में कर रहे हैं। आम तौर पर ये होता है कि वो सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो हरकत में कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं ना वो हरकत को मजहूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उनकी ये हरकत जो है वो ठीक की जानी चाहिए बस, और किसी चीज में उनको ना उलझाया जाए। उनको साथ अगर आप मोटे हरफों का भी बता दें, हरूफ कलकला भी बता दें, गुन्ना भी बता दें, मद भी बता दें उनको, तो वो तो कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले उनको हरकत जो होती है उनकी अदायगी जो है वो ठीक करवाई जाए बस। चाहे कोई कायदा लेकर वहां से सिर्फ और सिर्फ हरकत ठीक करवा दी जाए तो काफी सारे अल्फाज उनके सीधे हो जाएंगे, क्योंकि पहले अल्फाज को हमने सीधा करना है। जब अल्फाज ही सीधे नहीं है कि अल्हम्दु की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं, देहातों में होते हैं ना, तो जो है वो ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं, वो उनको पढ़ाई भी ऐसे क्या होता है ना। पहले दौर में जो है वो बाद वो कुर्रा भी इतने ज्यादा नहीं होते थे, तो मस्जिद में गया इमाम, मस्जिद ने जो है उनको जैसे सबक दे दिया, या जो है वो ख्वातीन जो है वो घरों में पढ़ाती पढ़ाती थी, और ख्वातीन के पढ़ने का अपना भी अंदाज ऐसा ही होता था। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी जो है फ़र्क पड़ गया है। ख्वातीन जो है बहुत अच्छा कुरान पढ़ने लगी हैं, बाद में कुरान सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ये दो तीन इदारे मारूफ जो हैं, अलहुदा है माशाल्लाह, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से तालबात आती हैं, पढ़ के बहुत अच्छा पढ़ा होता है। इस तरह ये हमारा कुलियतुल कुरान है, इसमें बहुत सी क्लासेस चल रही हैं, और इसी तरह ही कुलियतुल कुरान ये फूलनगर में कारी साहिब अहमद मीर मोहम्मदी जो है उन्होंने भी शुरू किया हुआ है ये सिलसिला ख्वातीन का पढ़ाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है ख्वातीन में बड़ा ये ज़ौक भी है अच्छा पढ़ने का, और बहुत अच्छा पढ़ती भी है। लेकिन जो पहले लोग अब पढ़ चुके हैं या अब भी अच्छा पढ़ने वालों तक उनकी रसाई नहीं है, और जब फिर उनकी रसाई हो जाए उन तक तो फिर उनका क्या किया जाए, तो फिर मतलब ये है कि उनकी पहले जो हरकत हैं ज़बर ज़ेर पहले वो ठीक करवाई जाए, क्योंकि ज़बर ज़ेर से पेश को सही अदा ना करने से काफ़ी सारी गलतियां जो है ना वो हो रही होती हैं। और जब हरकत ठीक हो जाएंगी तो काफ़ी सारी गलतियां खुद ब खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हरकत की अदायगी ठीक करवाने के बाद फिर हरफ मद्दा जो है वो उनको बताए जाने चाहिए कि ये हरूफ मद्दा है, इनको खींचना है। कब खींचना है, क्योंकि हरकत को आम तौर पर वो खींच देते होते हैं ना। एक तो है मजहूल पढ़ना और एक है बिला वजह खींचना। तो पहले जो है वो मजहूल को मारूफ किया जाना चाहिए ताकि हरकत ठीक हो। ठीक होने के बाद फिर उनको बताया जाए कि इनको खींचना कब है, कि ये तीन हरफ है, जब पेश के बाद ये वाली वाओ जज़म वाली आए तब आप इसको थोड़ा सा खींचे, वरना इसको नहीं खींचे। जबर वाले हरफ के बाद अलीफ आए तब आप इसको थोड़ा सा
लंबा करें और इतना सा लंबा करें बस। अगर ये नहीं है तो बिल्कुल इसको नहीं खींचें। तो हरकत ठीक करने के बाद हरफ मद्दा जब उनकी भी पहचान हो जाएगी कि हरकत को कहाँ खींचना है और कहाँ नहीं खींचना है, तो काफ़ी सारे अल्फाज उनके सीधे हो जाएंगे और काफ़ी सारी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। फिर उसके बाद उनको मोटे हरूफ जो है उनकी मशक करवाई जाए कि ये हरफ जो है ये मोटा है और ये बारीक है, ताकि लहने जली से बचा जा सके, क्योंकि हरकत को मजहूल पढ़ना ये भी लाने जली है और ज्यादती कर देना कुरान में किसी हरफ की ये भी लाने जली है। आपको पता, किसी हरफ को बढ़ा देना तो हरकत को खींचने से ही जाती होती है, वैसे जाती होती नहीं है आपको पता। जबर वाले हरफ को खींच दिया है, अलीफ ज्यादा हो गया, या जेर वाले हर्फ को या जेर को खींच दिया तो उसमें या पैदा हो जाएगी, और इस तरह पेश है। तो ये लाने जली जाए इस तरह जो है वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद मोटे जो हर्फ हैं आस्ता आस्ता जब इनकी मशक पूरी हो जाए, उनको भी थोड़ा सी तसल्ली हो जाए कि हम कुछ कुरान जो है वो पढ़ना ठीक पढ़ने लग गए हैं, तो इस तरह उनके अंदर जो है वो शौक पैदा हो जाएगा और डिसहार्ड नहीं होंगे। वरना जो है वो हौसला हार देंगे कि इतनी सारी गलतियां हैं और हम इसको कैसे ठीक करें, कैसे पढ़ रहे हैं बस पढ़ते रहते नहीं। तो उनको इतना सा बताया जाए कि एक दो गलतियां आपकी, अब बस आप इनको ठीक कर ले और कुरान ठीक हो जाएगा। तो जब एक दो गलतियां उनकी ठीक हो गई तो उनको खुद ब खुद जो है वो शौक पैदा हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि कुरान ठीक कैसे पढ़ना है। तो फिर जो है वो मोटे जो हरफ हैं वो ठीक करवा दिए जाए, मोटे और बारीक के दरमियान फर्क करवा दिया जाए। फिर इसके बाद आस्ता आस्ता मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ जो हैं उनमें फ़र्क करवाना शुरू कर दिया जाए। अगर शुरू से आप उनको कहें कि भाई हा और हा, हमज़ा और ऐन, तो ज़ोर लगा लगा के खप ही जाएंगे, एक दो दिनों में जो है वो छोड़ देंगे सब कुछ। तो फिर उसके बाद आप उनको हरफ जो नरम पढ़ने हैं, कौन से हरफ जो है वो सख्त पढ़ने हैं, तो इस तरह की बतदरीज जो है वो आप उनको तालीम दें, ताकि जो है वो आस्ता आस्ता उसको बार बार मशक करने से, यानी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा मशक करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक मशक करने से है। अगर काफ़ी सारी चीज़ें उनको बता दी जाए ना, तो फिर वो एक चीज़ के ऊपर भी सही तरह मशक नहीं कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ के ऊपर जब वो मुसलसल मशक करेंगे तो वो ठीक होती जाएगी। क्योंकि वो जैसे अल्लामा जदरी ने अपनी मुकदमतुल जज़रिया के अंदर बयान किया ना कि वलैसा बैना हुआ बैना तरकी ही इल्ला रियादत मरीम बिफक्की ही, फ़ायदे तजवीज़ आते हों या ना आते हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ अमली मशक से पड़ता है। लेकिन क़वाइद तजवीज़ है ये अमली मशक में मुआविन साबित होते हैं ज़रूर, लेकिन ये हर एक के लिए जो है वो मुआविन साबित कैसे होंगे उसके मुताबिक उनको बताना होगा। अब पहले जो है वो किसी बुजुर्ग को, बुजुर्ग खातून को या बुजुर्ग मर्द को अगर आप एक कवायद की किताब जो है वो किसके सामने रख दें और उनको कहें कि इनको पहले याद करो, तो उनसे तो नहीं हो सकेगा ना। इसलिए उनको जो जो पढ़ाएं उसके मुताबिक उनको थोड़ा थोड़ा साथ बताते जाएं, क्योंकि उनके लिए कवायद तजवीद को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, सिर्फ कुरान को ठीक पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए बतदरीज जो है उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एक ही दिन में 3-4 गलतियां नहीं बता देनी चाहिए। अब जो कुरान ठीक पढ़ रहा है उसके सामने कोई कुरान गलत पढ़ेगा तो हर हर हर्फ पे उसको तो बेचैनी होती है कि ये क्या है, सारे कुरान गलत पढ़े जा रहा है। एक लफ्ज पढ़ेगा तो उसके अंदर कोई और गलती होगी, अगले में कोई और गलती होगी, तो हर एक गलती ठीक कराने बैठ जाएगा वो, क्योंकि उसको बेचैनी हो रही है कि कुरान गलत पढ़ा जा रहा है। अब उसको सब्र करना पड़ेगा जरा थोड़ा सा, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ मुदावमत ये हमेशगी करनी पड़ेगी कि एक ही गलती उसको कहे कि मैंने आज बाकी जितनी भी गलतियां हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आज मैंने इसकी एक ही गलती ठीक करवानी है। जब तक ये एक गलती ठीक नहीं होती बाकी गलतियां चाहे वो हो रही हैं, अब वो हो तो रही हैं ठीक है, अब उसका कोई हल नहीं है ना। अब उसको ठीक करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना ये भी बच्चों की तरह ही होते हैं, ये याद रखें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना तो वो एक चीज हम उसको बताने के लिए कई बार जो है वो बताते हैं और बड़े शौक से बता रहे होते हैं। साथ ये भी है क्योंकि वो बच्चा है ना, वो कई कई बार पूछेगा
हम उसको शौक से बता रहे होते हैं, इसलिए कि ये अभी बच्चा है और ये सीख रहा है, उसको कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जो बड़ी उम्र के होते हैं वो भी आस्ता आस्ता जो है वो बच्चों की तरह होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके साथ वही बच्चों वाला ही सलूक करना पड़ेगा। अब बच्चे को तो नहीं आप एक दिन सारी जो है वो चीजें पढ़ा देंगे, ऐसे बड़ों को पढ़ाने के लिए भी एक एक गलती को पकड़ा जाए, जो गलती नुमाया नजर आती हो उसको। मद है, अब उसको मद अगर आप सिखाना बैठ जाए पहले दिन ही कि एक अलीफ के बराबर पढ़नी है, ये मद 2 अलीफ के बराबर करनी है, ये 3 अलीफ के बराबर करनी है, हाँ जी, तो उनको क्या समझ आएगी? उनको सिर्फ इतनी सी बता दें, छोटी मद और बड़ी मद, बस। मुख्तसर से कायदे भी अगर पढ़ाने हैं किसी को तो उनको मुख्तसर कायदे जो है वो पढ़ाए जाएं, साथ साथ के हरफ मद्दा बता दिए जाएं, हरफ गुन्ना बता दिए जाएं कि ये गुन्ना वाले हरफ है। अब गुन्ना नीम के ऊपर कब करना है कब नहीं करना है, इतना सा उसको अगर कायदे पढ़ाना शुरू कर देना, इख्फा का कायदा ये है, इजहार का कायदा ये है, इदगाम का कायदा ये है, तो वो याद नहीं कर सके। उनको सिर्फ इतना बता दें कि मीम के ऊपर गुन्ना कब करना है कब नहीं करना, जब वो कुछ सीख जाए तो। और नून के गुन्ने, अब नून के कायदे जो हैं वो सारे उनको पढ़ाना शुरू कर दें तो वो नहीं पढ़ सकेंगे। उनको उतना सा बता दें कि नून के ऊपर गुन्ना कब करना है और कब नहीं करना है, मुख्तसर जो है वो उनको बताते जाए। जैसे अगर आप अलकौल सदीद लेना तो हर चैप्टर के शुरू में कुछ जो है वो इजमाली यानी मुख्तसर अहकाम लिखे हुए हैं। तो ये जो इजमाली यानी मुख्तसर अहकाम है, ये उन लोगों के लिए है जो बाकायदा इल्म तजवीद नहीं सीख रहे, सिर्फ उन्होंने कुरान ठीक पढ़ना सीखना है बस। तो ये उनको मुख्तसर कायदे जो है उनको बता दिए जाए, ताकि वो उतना सा पढ़ने के बाद उन कायद को याद करने के बाद बस जो है उस कुरान को ठीक पढ़े, उसको इतवाए साकिनैन के कायदे पढ़ाने लग जाए, उनको हमजा के अहकाम पढ़ाने लग जाए, और उनको जो है वो हाय ज़मीर के कवायद पढ़ाना शुरू कर दें, इदगाम की किस्में सारी शुरू कर दें, तो वो नहीं पढ़ सकेंगे। तो उनको मुख्तसर से कायदे साथ साथ पढ़ाएं और एक एक गलती ठीक करवाते जाएं। तो ये तालीम देते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तालीम में मुआविन जो है वो साबित होती है। मसलन वाइट बोर्ड है, वहाँ पे लिख के समझा दिया जाता है कुछ चीज़ें। मिसालों के तौर पर ये हरूफ, जो हरूफ मोटे पड़े जाने हैं उन हरफों को वहाँ पे भी एक दवा अलहदा से लिख दिया जाए, तो जब उनके ऊपर नज़र अलहदा से पड़ेगी तो वो ज़हन में बैठ जाएंगे कि क्योंकि ये जो हवासे खमसा है ना, हमारे 5 हवास हैं जिनके ज़रिए से मालूमात हासिल होती हैं, उनमें से पहली हिस्स जो है ना वो है बासिरा, नज़र यानी आँख। तो ये देखने से जो इल्म हासिल होता है, ये माहिरीन इल्म जो है ना वो माहिरीन तालीम जो है ना वो कहते हैं कि 70% इल्म हासिल होता है देखने से। तो ये कवायद और ये हरूफ जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो सबक पढ़ाया जा रहा है, उसकी कुछ मिसालें या वो कुछ हरूफ वहाँ पे अलहदा से वाइट बोर्ड के ऊपर बड़े से ज़रा लिख दिए जाएं, तो बच्चों की नज़र सिर्फ उन हरूफ की तरफ पड़ेगी। अगर किताब के ऊपर भी हालांकि वो लिखे होते हैं, लेकिन जब किताब के ऊपर देखते हैं तो उसके साथ इर्द गिर्द दाएं बाएं काफ़ी सारी और चीज़ें भी लिखी होती हैं, तो वो नज़र जाए इधर उधर भी रहती है। लेकिन जब उसको वहाँ से निकाल के वहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिख दिया जाएगा, यानी मुफरदात की तख्ती है, वहाँ से आप मोटे हरफों को पकड़ते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं, तो बार बार बच्चा जब उनको देखेगा तो वो उसी तरह उसके ज़हन में नक्श हो जाएंगे। क्योंकि देखने से 70% जो है इल्म हासिल होता है। और इस तरह है हवासे खमसा में से दूसरे नंबर पर है सामिआ, ये हिस्सा है एक यानी कान, सुनना। अब सुनने से भी दूसरे नंबर पर जो है वो सुनने से इल्म हासिल होता है, जो ज्यादा यानी देखने के बाद दूसरे नंबर पर है सुनना। सुनने से इल्म उतना ज्यादा हासिल नहीं होता जितना देखने से इल्म हासिल होता है। आमतौर पर हम देखते हैं ना, देख देख कर काफी सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती है, बच्चे भी देख देख कर काफी सारी चीजें जो है वो सीख लेते हैं। तो देखने से ज्यादा इल्म हासिल होता है। तो कोई चीज जो है वो अलहदा से
अगर आप बच्चों को दिखा दी जाए तो उनके दिमाग में बैठ जाएगी। इसी तरह जो है वो सुनने से भी दूसरे नंबर पर है। फिर इसी तरह जो है वो ये लामिसा होता है, कुव्वत लामिसा, हिस, छूना, हाथ के साथ लमस, किसी को चीज को टच करके जो है वो महसूस कर लेते हैं कि ये कैसी है, नरम है, सख्त है, तो इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। और एक कुव्वत शामा होती है, सूंघने से भी एक इल्म हासिल होता है। और एक कुव्वत जायका होती है, चखने से इल्म हासिल होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा जो ताल्लुक है वो कुव्वत ये बासरा, ये देखने, और उसके साथ है इसके साथ सामया, सुनने से है ज्यादातर। तो अब बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उनको कुछ रिकॉर्डिंग अब आई हुई है, क्योंकि मीडिया का दौर है, तो हर तख्ती की रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, कायदा पढ़ाने के तरीकाकार भी मौजूद हैं। तो बच्चों को कुछ चीज़ें बताने के बाद कुछ जब वो पढ़ लें तो उनको कुछ रिकॉर्डिंग भी सुना दी जाए, ताकि उसके जहन में वो आवाज़, सही जो आवाज़ है वो भी उसके कानों में पड़े, तो उसको सुनकर उसके मुताबिक जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये वाइट बोर्ड का इस्तेमाल और इस तरह जो है ये रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल जो है, ये भी जो है वो ज़रूरी है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीका था कि वो लिख कर भी समझाया करते थे। कुरान की एक आयत है, वह अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। तो इसके अंदर लफ्ज़ सिरात का जिक्र है और सुबुल का जिक्र है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर समझाते हुए ज़मीन पर एक लंबी जो है वो लकीर जो है वो खींच दी, और लंबी लकीर खींचने के बाद बताया कि ये सिरात है, ये एक सीधा रास्ता, एक लंबा रास्ता है। फिर उसके दाएं बाएं छोटी छोटी जो है वो लाइनें भी जो है वो लगा के लकीरें जो है वो खींच कर फरमाया कि ये सुबल हैं, ये रास्ते हैं, और हर रास्ते पे, हर सबील पे शैतान जो है वो बैठा हुआ है कि वो अपनी तरफ खींचने की जो है वो कोशिश करता है। तो ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़मीन के ऊपर लकीर लगाकर यानी सहाबा इकराम को जब समझाया। तो ये भी एक तरीका है कि वाइट बोर्ड को इस्तेमाल किया जाए और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो लिखी जाएं और लिख कर, ताकि बच्चों की, पढ़ने वालों की नज़र जो है उनकी तरफ मरकूज रहे और उनको इधर उधर से तवज्जो हटाकर उसकी तरफ देखें, और ताकि उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाए। और फिर बच्चों को अलग-अलग बैठा कर उनको हैंड फ्री लगा दें, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके अंदर जो सबक पढ़ाया जा रहा है उसके मुतल्लिका वहाँ नेट से मिल जाती हैं चीज़ें, रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वो उनको सुनाई जाए, बार बार सुनाई जाए, बार बार सुनाई जाए, और फिर उसके मुताबिक उनको पढ़ाने की मशक की जाए। तो इस तरह जो है ये बच्चे इब्तिदा से ही जो है उस कायदे तजवीज़ के मुताबिक ही सीखेंगे। और तीसरी किस्म है हमारे दरमियान में जो हुफ़ाज़ होते हैं या जिन्होंने नाज़रा पढ़ लिया होता है, अब उनके अंदर भी कुछ गलतियां हैं। उनको एक होता है कि सिंपल एक लाने जली से बचना और एक है कि लाने खफी से बचना है। अब उनको कायदे तजवीद भी पढ़ाने हैं और तरतीब भी साथ पढ़ानी है। अब कायदे तजवीद के लिए बेहतर तो ये है कि पहले एक इब्तदाई किताब हो जिसके अंदर मुख्तसर जो है वो अहकाम तजवीज़ के लिखे हुए हों, खारिज भी उसमें आ जाते हैं, सिफात भी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ना हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि किताब पढ़ाते वक्त जो तरतीब किताब वाले ने लगा दी है उसी तरतीब से ही पढ़ाया जाए, अगरचे उसका ताल्लुक अभी उस तालिब इल्म के साथ ना हो जो तरतील अभी सीख रहा है। अब उसको तरतील उसको सिखाना शुरू की है तो उसको शुरू से पढ़ाना शुरू कर दिया है, ये बसमला के अहकाम, फसल वसल के एतबार से जो अहकाम पढ़ाए जा रहे होते हैं वो। अब अगर ये शुरू में ये छोड़ भी दिए जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अहकाम उसको पढ़ा दिए जाएं
جو شروع سے اپلائی کیے جا رہے ہیں. پتہ ہے کہ مخارج بھی ہو سکتے ہیں، وہ صفات بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ میم ساکن کے نون ساکن کے احکام بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھ لے اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا ذہن بھی کھل جائے گا، تھوڑا سا ذہن وسیع بھی ہو جائے گا، اور دوسری چیزیں بھی ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ فصل وصل کے احکام بچے کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ اس کا پریکٹیکل کے ساتھ ابھی شروع میں کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو شروع سے اگر یہ فصل چھوڑ بھی دی جائے تو اس کو مخارج یا صفات یا میم ساکن یا نون ساکن کے احکام پہلے پڑھا دیے جائیں اور مد کے احکام پہلے پڑھا دیے جائیں، تاکہ ترتیل جب آپ اس کو سکھا رہے ہیں تو ترتیل کے ساتھ زیادہ تعلق جو ہے وہ کس کا ہے؟ مخارج کا، صفات کا، اور اسی طرح ہی میم ساکن کے احکام کا، نون ساکن کے جو احکام ہیں ان کا تعلق ہے. تو وہ قواعد جو ہے وہ بچوں کو پہلے پڑھا دیے جائیں، تاکہ قرآن پڑھاتے وقت ان قواعد کے مطابق ترتیل کرواتے وقت وہ قواعد جب وہ بچہ دیکھے گا کہ یہ تو میرے کام آ رہے ہیں، اس سے قرآن جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس کی دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی. فصل وصل کے احکام جو ہے ان کو شروع میں پڑھا دیے جائیں تو اس کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اور اس کا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہوتا. یہ ایک اضافی سی چیز ہے، اور یہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ جو احکام ہے جس کی مدد سے اس نے قرآن ٹھیک کرنا ہے، تو وہ جو زیادہ ضروری ہیں پہلے وہ پڑھائے جانے چاہیے. اگر شروع سے اس کو کوئی اجتماعی ساکنین کی فصل جو ہے پڑھانا شروع کر دی جائے، وہ تو ویسے بھی آخر میں ہی آتی ہے جا کر، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو آسان ہو اور جس کا تعلق زیادہ ہو وہ چیزیں پہلے پڑھائی جانی چاہیے، اور جو مشکل ہیں اور ان کا تعلق بھی زیادہ نہیں ہے وہ بعد میں پڑھائی جانی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک ترتیل پڑھاتے وقت بھی یہ تدریج کو وہ سامنے جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے کہ ایک دم ہی ساری غلطیاں ان کو اس کو بھی نہ بتائی جائے. اس میں بھی ایک فصل پہلے پڑھا دی گئی ہے قواعد کی، تو ان قواعد کی عملی مشق کروائی جائے، بار بار جو ہے ان کی مشق کروائی جائے، بار بار ان کی مشق کروائی جائے، تاکہ وہ جو فصل پڑھائی ہے وہ پختہ ہو. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ قواعد تجوید پہ تو زیادہ زور دے دیتے ہیں، کتاب کو اچھی طرح پڑھا دیتے ہیں، یاد کروا دیتے ہیں، اور اس کے مطابق مشق کوئی نہیں کروائی جا رہی ہوتی. مخارج کا باب پورا یاد کروا دیا گیا ہے لیکن اس کے مطابق مشق نہیں کروائی. تو مخارج کا باب پڑھاتے وقت جب ابتدائی 2-3 مخرج پڑھائے ہیں تو پہلے اس کے مطابق اس کی مشق ہونی چاہیے. اب سب کا یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو میں نے تو قواعد تجوید پڑھانے ہیں، مشق کرانے کے لیے کوئی اور ہوگا، ایسے نہیں ہے. یہ جو قواعد پڑھا رہا ہے وہی ساتھ مشق کرائے تو بچوں کو زیادہ سمجھ آئے گی. بسا اوقات یہ مدارس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ مشق کرانے کے لیے کوئی اور استاد ہوتے ہیں اور قواعد پڑھانے کے لیے کوئی اور ہوتے ہیں. اب جو قواعد پڑھایا جا رہا ہے وہ اپنے انداز سے قواعد پڑھایا جا رہا ہے، اور جو مشق کروا رہا ہے وہ اپنے انداز سے مشق کروایا جا رہا ہے. تو ایک ہی اگر ٹیچر قواعد بھی پڑھائے اور اس کی عملی مشق بھی کروائے اور ایک ایک فصل کی ساتھ ساتھ مشق کرواتے جائیں، یہ نہیں کہ پوری کتاب پہلے پڑھائیں گے پھر اس کے بعد مشق کروائیں گے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. مخارج کا بیان پڑھایا جا رہا ہے، جو مخارج پڑھائے گئے ہیں ان کی بار بار جو ہے وہ مشق ہونی چاہیے اور پھر آگے جانا چاہیے. پھر اس طرح جو ہے وہ صفات کا بیان جب شروع ہو، صفات کا چیپٹر ہے، باب ہے، اس کو پڑھائیں تو پھر اس کی بھی ساتھ ساتھ مشق کروائی جائے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہر چیپٹر کو پڑھاتے ہوئے اس کی ساتھ ساتھ عملی مشق ہونا ضروری ہے. عملی مشق کے بغیر قواعد تجوید کا پڑھنا یہ فائدہ نہیں دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے قواعد تجوید کے ساتھ ساتھ عملی مشق کے اوپر زیادہ زور دیا جانا چاہیے. اور پھر عملی مشق کرواتے وقت کچھ دیر جو ہے اس کو مشق کروا دی جائے اور پھر ان کو خود وقت دیا جائے کہ بچوں کو کہ وہ خود بار بار جو ہے وہ اس کی مشق کرے، اور پھر مشق کرنے کے بعد اب پھر آ کر استاد کو وہ سنائیں.
कुछ देर उस्ताद खुद जो है मशक कराए। बस अवकात ये होता है कि क्लास में इज्तिमाई तौर पर मशक करवा दी जाती है, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब 4 स्टूडेंट हैं, 5 हैं या 10 हैं, अब उनको मशक करवाई जा रही है। अब जब उस्ताद पढ़ेगा तो बच्चे तो चलो कम से कम सुन लेंगे कि उस्ताद ने कैसे पढ़ा है, टीचर ने कैसे पढ़ा है। अब जब बच्चे पढ़ेंगे तो टीचर को क्या पता चलेगा कि बच्चों ने कैसे पढ़ा है? तो हर बच्चे को लहदा मशक करवाई जानी चाहिए। इससे थोड़ा सा वक्त मिल जाए उसको, लेकिन पता तो चले ना कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और उस्ताद क्या पढ़ रहा है। बच्चे की तवज्जो भी रहेगी उस्ताद की तरफ। जब इज्तिमाई होता है तो बच्चे तवज्जो भी नहीं कर रहे होते, टीचर की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं होती, बस उनके कानों में आवाज़ तकरार ही होती है, लेकिन उनको अंदाज का नहीं पता चल रहा होता और वो गौर नहीं कर रहे होते कि उस्ताद ने कैसे पढ़ा है और हमने इसी तरह कैसे पढ़ना है। और वो भी क्या करते हैं, जब बच्चे सब मिलके पढ़ते हैं ना तो वो भी साथ आवाज़ निकाल देते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि साथ आवाज़ निकाल देते हैं और जो ही खत्म होती है अपनी आवाज़ भी बंद कर लेते हैं। तो हर बच्चे को अलग-अलग मशक करवाई जानी चाहिए। और फिर उसके साथ-साथ कोई अच्छे जो कारी हैं, कुर्रा हैं, जिनका तलफ़्फ़ुज़, लहजा या अंदाज़ अच्छा हो। ज़्यादा ज़ोर जो है वो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है वो होती है, अच्छी आवाज़ को नहीं देखते। किसकी आवाज़ अच्छी है उस पे लगा दें, हाँ, अच्छी आवाज़ भी होनी चाहिए। और बच्चे के रुझान को भी देख लिया जाए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है या कौन-सा लहजा वो इख्तियार कर सकता है। तो वो लहजा जब वो उस अंदाज में पढ़ने की कोशिश भी करेगा तो उसका तलफ़्फ़ुज़ भी उसके मुताबिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जिस लहजे की तरफ उसका रुझान हो तो उसकी रिकॉर्डिंग उतना सा जो सबक है उसको जो है वो बार-बार जो है रिपीट करवाया जाए, सुनवाया जाए। बाहर बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे होते हैं ना, तो हिफ्ज़ करते वक़्त जो उसका सबक हो, जो रुकू है ना, वो उसका पहले नाज़रा ठीक करवाने के बाद बच्चे को बार-बार जो है ना वो एक रुकू उसके कानों में, ज़्यादा बेहतर ये है कि उसके कानों में हैंड फ्री ये जो होता है ना, ये लगा दी जाए, ताकि आवाज़ जो है वो यकसू होकर उसके कान में जाएगी और वो गौर से सुनेगा भी। फिर उसके बाद उसके मुताबिक जो है ना उसको पढ़े। तो ये है कि बच्चों को साथ-साथ मशक करवाई जानी चाहिए और मशक अकेले-अकेले बच्चे को, अकेले-अकेले स्टूडेंट को होनी चाहिए, ताकि ये होता है बिलमुशाफ़ा पढ़ना। अब ये बिलमुशाफ़ा ये ना हो कि 10 बच्चों को इकट्ठे पढ़ा दिया है, हो ये बिलमुशाफ़ा कि उस्ताद के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं जी, लेकिन उस्ताद के सामने तो बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन सामने होने के बावजूद भी समझें कि वो सामने नहीं है। जब सारे बच्चे आवाज़ इकट्ठी निकालेंगे तो उस्ताद को क्या पता चलेगा? इसी तरह ही जब कुरान नाज़िल हो रहा था ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिब्रील के साथ-साथ जो है वो फटाफट पढ़ना शुरू कर देते, ताकि कोई लफ्ज़ जो है ये इसमें से कोई कलिमा, कोई आयत जो है वो रह ना जाए। तो जिब अल्लाह ताला ने जिब्रील के ज़रिए वो सूरह क़यामा की जो आयत है ना, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजला बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना। कहा गया कि आप अपनी ज़ुबान को जल्दी-जल्दी हरकत ना दिया करें। जब कुरान पढ़ा जाए तब आप उसकी इत्तिबा करें, उसके पीछे पढ़ें। मतलब यह है कि जिब्रील जब पढ़ रहे हों तो गौर से सुनें, ताकि उसकी अदायगी का पता चले कि अदायगी क्या होनी है। फिर उसके बाद जो है वो आप पढ़ें। आपके सीने में महफूज़ करना ये हमारा काम है, अल्लाह ताला ने कहा कि हम इसको महफूज़ कर देंगे। आप इस खौफ से, इस डर से फटाफट पीछे-पीछे ना पढ़ना शुरू कर दिया करें कि कहीं रह ना जाए इसमें से कुछ हिस्सा कुरान का। तो मकसद क्या था कि कुरान की अदायगी, अल्लाह का कलाम है ना, दुनिया में जो कलाम होते हैं ना, बाद लोगों के कलाम है ना, कोई गज़ल है, कोई नसर है, कोई शेर है, कोई नज़म है, कोई नात है, तो जिसने लिखी हो वो खुद पढ़ भी दे, तो वो उसके आवाज़ के उतार-चढ़ाव को, उन अल्फाज किस लफ़्ज़ पे आवाज़ को कैसे निकालना है, कहाँ पे आवाज़ को उठाना है, कहाँ पे आवाज़ को नीचा करना है, वो खुद समझ रहा होता है, क्योंकि उसने खुद अल्फाज तख्लीक किए होते हैं। तो जिस अंदाज से वो पढ़ता है ना, वो खुद पढ़ दे तो लोग फिर उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ होता है ना, ये जब अंग्रेजी सीखते हैं, इंग्लिश सीख रहे होते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं,
تو وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح استاد جو ہے وہ بول رہا ہے اس طرح جو ہے وہ جملے کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری لینگویج اسی کے مطابق ہو. کوئی انگریز ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے جبریل علیہ السلام جب پڑھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ پہلے اس کو سنیں اور پھر اس کو جو ہے وہ پڑھے. تو اسی طرح ہی سب سے پہلے استاد خود پڑھے. یہ نہیں کہے کہ بچے کو تم پڑھو، بچے کو نہیں کہنا کہ تم پڑھو، کیونکہ بچہ اگر پڑھے گا نا تو وہ پہلے غلط پڑھ دے گا، غلط اس کی زبان سے ادا ہو جائے گا تو وہ اس کی زبان پہ وہ جاری ہو جائے گا نا غلط، تو پھر اس کو ٹھیک کرانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے استاد کو خود چاہیے کہ وہ خود پڑھے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سنے. سننے کے بعد پھر اس بچے کو کہا جائے، اس اسٹوڈنٹ کو کہا جائے کہ تم پڑھو، اور پھر وہ پڑھے. پھر اس کے اندر جو غلطیاں ہوں گی اس کو ٹھیک کروائی جائیں گی. تو اس کے مطابق اگر تعلیم دی جائے گی تو یہ امید ہے کہ بچوں کو اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو بہت فائدہ ہوگا. تو میں نے یہ 3 طرح کی، ایک تو تجوید کی 2 قسمیں ہیں، ایک عملی ہے اور ایک علمی ہے. علمی کا مطلب ہے کہ قواعد تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا، اور عملی کا مطلب قواعد تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھا جائے. اور اس کا تعلق مشق سے ہے، جتنی زیادہ مشق کروائیں گے اتنا زیادہ قرآن ٹھیک ہوگا. اور علمی کا مطلب کیا ہے کہ قواعد تجوید کو یاد کرنا، اور قواعد تجوید کو یاد کرنے کے بعد ان قواعد کی روشنی میں مشق کروائی جائے گی تو اس میں آسانی ہوگی. اگرچہ جو ہے وہ قواعد تجوید کے بغیر بھی مشق کروا دی جائے تو قرآن ٹھیک ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے. مقصد قرآن ٹھیک پڑھنا اور پڑھانا ہے، مقصد قواعد تجوید یاد کروانا نہیں ہے. صحابہ کرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قاعدے نہیں تھے. اس لیے نہیں تھے کہ ان کی زبان عربی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور اسی طرح پڑھ لیتے، بس مقصد تو یہی تھا صرف. اب یہ جو قواعد تجوید ہیں یہ اجمیوں کے لیے مرتب کیے گئے ہیں تاکہ ان قواعد کی روشنی میں قرآن کی صحیح جو ہے وہ ادائیگی کر سکے، ورنہ ان قواعد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ قواعد جو ہے یہ قرآن کی صحیح ادائیگی میں معاون اور ممد جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. تو ان کو اسی طرح اسی ثانوی حیثیت اس کو دی جانی چاہیے. جتنی زیادہ اہمیت جو ہے وہ ہم اس دور میں قواعد تجوید کو دیتے ہیں اتنی زیادہ اہمیت جو ہے مشق کو نہیں دی جا رہی ہوتی. تو مشق کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے، لہذا اس کو پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے. تو مشق کے اوپر زیادہ زور دیا جانا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ اصل جو ہے وہ مشق ہے، اصل قواعد تجوید نہیں ہے. جبکہ ہم نے قواعد تجوید کو اصل بنا لیا ہے اور مشق کو جو ہے وہ ثانوی حیثیت دے دی ہے. اس لیے مشق کے اوپر زیادہ زور دیا جانا چاہیے. تو یہ مشق یہ کیا ہے؟ عملی ہے. اور قواعد جو ہے یہ کیا ہے؟ علمی ہے. قواعد تجوید کی روشنی میں مشق کی جائے گی تو اس سے فائدہ جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ، یعنی ان کو ابتدا ہی سے جو جو لفظ پڑھائے جائیں وہ ٹھیک تجوید کے ساتھ ہی پڑھائے جائیں تاکہ ان کو بعد میں علیحدہ سے تجوید پڑھانے کی ضرورت نہ پڑے. بعض مدارس ایسے ہیں جہاں پہ وہ تجوید پڑھاتے نہیں ہیں، باقاعدہ قواعد تجوید ان کے ہاں نہیں ہے. یہ دیوبندیوں کے بعض مدارس ہیں، انہیں خود جا کے دیکھا ہے. جب وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاں باقاعدہ تجوید کا کورس ہی نہیں ہوتا. وہاں سے پڑھنے والے قاری تو ہوتے ہیں لیکن ان سے پوچھتے ہیں کوئی کتاب پڑھی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، قواعد تجوید ہم نے نہیں پڑھے، لیکن قرآن ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو صرف نقصان اتنا ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے آگے پڑھانا ہے تو ان کو پڑھانے میں مشکل آئے گی. کچھ قواعد تو ہیں نا جن قواعد کے بغیر جو ہے وہ قرآن کو سیکھے بغیر جو ہے وہ قرآن کو سیکھ پڑھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. لیکن مقصد جو ان کا ہوتا ہے وہ انہوں نے خود حاصل کر لیا ہوتا ہے کہ قرآن ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مشق کو پہلے نمبر پہ رکھا جائے اور قواعد تجوید کو دوسرے نمبر پہ رکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بڑوں کو، بڑی عمر کے جو لوگ ان کو پڑھانا ہے
تو ان کو بھی بتایا کہ بتدریج ہونا چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہی ساری غلطیاں نکال دیں, ایک دن کوئی غلطیاں نہیں, ساری نہیں ٹھیک نہیں ہوں گی, خود بھی جو ہے وہ تھکیں گے اور ان کو بھی تھکائیں گے. تو اس لیے ایک ایک غلطی جو ہے وہ ٹھیک رہی جانی چاہیے. تو یہ کچھ باتیں, کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھیں, وہ میں نے بتا دی ہیں آپ لوگوں کو. اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھ لیں. مزید بات میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں. السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ آپ نے اچھے طریقے سے ہمیں سکھایا ہے. اور ایک چیز میری ایک اسٹوڈنٹ کے لیے میں تھوڑا سا, اگر آپ کہیں تو مجھے چھوٹی سی چیز نا میں پوچھنا چاہ رہی تھی. وہ ہر حمزہ کو نا ہا بولتی ہے. ویسے بھی بہت ساری غلطیاں ہیں لیکن یہ ہاں نہیں میں کام کر پا رہی, تو اس کے لیے کوئی رہنمائی. ہر حمزہ کو ہا بولتی ہیں, یعنی جیسے اونا ہے نا تو وہ ضروری ہا کر دے گی, یعنی اس سے نہیں کنٹرول کہ وہ حمزہ کو سٹارٹ میں ہو چاہے تو یا اینڈ پہ ہو, ہر حمزہ اس کا ہا بن جاتا ہے. تو وہ بہت میں نے اس کو ڈرل بھی کروائی ہے, مشق بھی کروائی ہے, بار بار پیچھے بھی بلوایا ہے, لیکن وہ بالکل بے بس ہے. اس میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بڑی عمر ہے یا چھوٹی عمر کی ہے؟ بڑی, کالج جاتی ہے. مطلب ہے کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس کی زبان جو ہے وہ ہاں جی جی تو جی. عام باتیں کرنے میں بھی حمزہ کی آواز جو ہے وہ ہا کی طرح نکالتی ہے یا قرآن پڑھتے ہوئے بس؟ میرا خیال ہے کہ باقی نارمل بولتی ہے. وہ آن لائن میری یہ جو کلاس ہے نا اس میں ہے, اس لیے بس وہی 1 گھنٹہ ہوتا ہے جس میں اس سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اس کو اس حرف کی علیحدہ سے اکیلے حرف کی جو ہے وہ مشق کروائی جانی چاہیے, اور زبر زیر پیش کے ساتھ آ ای او آ ای او ایسے جو ہے اس کی علیحدہ سے. یہ کہ کلمے کے اندر جب وہ پڑھے گی نا لفظ کے اندر, تو وہ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ حرف کٹھے ہوتے ہیں. ہر ہاں حرف جی کی آواز ایک حرف ہے, اس کے ساتھ ہی وہ آیا ہوتا ہے, تو وہ جی مشکل جی ہو جائے گی. ہر حرف کی جو حرف ٹھیک کروانا ہو نا, اس ہاں جی حرف کی علیحدہ مشق کروائی جائے اس کو. ٹھیک اور ہے. کیسے کروانی ہے؟ اس حرف کو ساکن کرنا ہے, ساکن کرنے کے ساتھ اس کے شروع میں حمزہ لگانا ہے. بالکل مثلا ٹھیک با ہے. کی مشق کروانی ہے تو با کو علیحدہ ایک حرف اکیلا رکھ کر اب اب اب, اب اس کے ساتھ اس کی حمزہ کی مشق بھی ہو جائے گی. اور جی حمزہ جی پڑھانا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے, آ اے او آ اے او, اس طرح جو ہے اس کی مشق کروائی جائے تو امید ہے کہ وہ پیدا ہوگا. کیونکہ اگر آپ اس کو کلمے کے اندر اس کو کہیں نا کہ ہاں اس کو جی ٹھیک کرو, تو وہاں پہ نہیں وہ ٹھیک کر سکے گی. اس حمزہ کو علیحدہ سے یا باقی جو حرف تہجی ہیں ان کے ساتھ لگا کر اس کو پڑھایا جی جائے تو وہ باقی حرف بھی ٹھیک ہوں گے اور حمزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ساتھ انشاءاللہ. یہ بہت اچھی گائیڈ لائن آپ نے دی, جزاک اللہ خیر. میں ضرور اس پہ کام کروں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد محترم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد محترم, کوشش کے باوجود اور دوسرا یہ کہ کچھ طالبات ایسے یعنی کہ ہوں کہ جنہیں قواعد اچھے سے پکے آتے بھی ہیں اور وہ انہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ قاعدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی قاعدہ چھوڑ جاتے ہیں, اور جب انہیں یاد دہانی دلائی جائے کہ یہاں پہ یہ قاعدہ ہو رہا ہے, آپ یہ قاعدہ کریں, تب انہیں یاد آ جاتا ہے اور اچھے سے پکے قواعد بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے جی باوجود جی وہ جی مس کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا کیا ہاں, طریقہ یا کیا چیز ہوگی جس یہی بات میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارا زور قواعد تجوید پہ زیادہ ہوتا ہے, عملی مشق پہ کم ہوتا ہے. تو ان کی یہ مشق کی ضرورت ہے. مشق جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. ابھی آپ کہیں کہ فوراً جلدی سے ہو جائے, نہیں ہوگا. وہ قرآن کو قواعد تجوید کے مطابق پڑھتے رہیں گے, آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونا ہے. جیسے یہ کہ نا کوئی ایک ڈرائیور ہے, وہ شروع میں ابتدائی ڈرائیونگ سیکھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ابتدا میں تو بڑے روڈ پہ بھی نہیں چل سکتے, چھوٹے روڈ پہ بھی نہیں چل سکیں گے, بڑے کھلے میدان میں اس کو چلنا پڑے گا. کھلے میدان میں بھی کیا کریں گے, کبھی کدھر جا رہے ہوں گے, کبھی کدھر جا رہے ہوں گے.
सीधा नहीं वो चल सकेंगे। फिर आस्ता आस्ता उसको जगह तंग दी जाती है, कैसे चले आप। फिर आस्ता आस्ता जो है वो रश वाले में आते हैं। फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो बड़े रोड पे आते हैं। बड़े रोड पे फिर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ, सिग्नल पे रुक गए वहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं। बस अवकाश जगह तंग होती है, गाड़ी को रिवर्स करना पड़ता है। तो यही होता है कि जब वो गाड़ी चला चला के पुख्ता हो चुके होते हैं ना, फिर वो बसाव का ये भी होता है, देख रहे होते हैं कि वो सामने देख भी नहीं रहे होते और बड़े आराम से जो है वो गाड़ी चलाए जा रहे होते हैं और स्टीयरिंग को सिर्फ एक उंगली से घुमा रहे होते हैं। तो ये कुरान करीम भी जो है इसकी तिलावत ये भी इसी तरह ही है कि इसकी बार बार मशक करनी पड़ेगी, बार बार मशक करते रहेंगे, तब जो है वो खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। या तो फिर वो कुरान की तिलावत ज़्यादा करते नहीं है, उस्ताद के सामने जितना पढ़ लिया बस पढ़ लिया, उसके बाद वो पढ़ते नहीं होंगे वो मशक नहीं कर रहे। अब ये तो नहीं है कि ड्राइविंग सिखाने वाला उसको 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर थोड़ा सा सफ़र करवा दे और उस गाड़ी घर में खड़ी कर दी, कल को फिर वो जो सिखाने वाला है वो आए और थोड़ा सा चला के फिर वो गाड़ी खड़ी कर दे, तो वो तो ज़ाहिर है वो नहीं चला सकेगा ना। उसको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मशक करनी पड़ेगी, और जितना कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ये कवायद जो है वो ठीक होंगे। वरना ये तो हर लफ्ज़ में गुन्ना आ रहा है, कभी इजहार आ रहा है, कभी इख्फा आ रहा है, कि क्या हो रहा होता है। तो ये कुरान जो पढ़ रहे होते हैं ये कोई वही लाते कुछ सामने तो नहीं होती हर चीज़ें, क्योंकि ये प्रैक्टिस होती है, मशक होती है। फिर वो ज़बान जो है वो पक्की हो जाती है और ज़बान गलती खुद करने ही नहीं देती, गलती करना चाहे भी तो नहीं हो सकती होती। देखना कि जहाँ पे गुनाह करना है तो वो गुनाह कर करके मशक कर करके इतने पुख्ता हो चुके होते हैं वो हरूफ के, वहाँ पे अगर आप गुनाह छोड़ना चाहें तो छोड़ा नहीं जा रहा होता। और जहाँ पे गुनाह नहीं करना होता वहाँ पे अगर गुनाह करना चाहें, हरूफे हल्की हैं। अब हरूफे हल्की की मशक इतनी ज़्यादा की होती है कि गुनाह नहीं करना, गुनाह ना करने की, कि अगर वहाँ पे गुनाह करना चाहें तो वो हो नहीं रहा होता, गुनाह करना चाहें तो वो नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पे गुनाह ना करने की मशक की होती है ना। अब ये तो नहीं होता कि वहाँ पे एक लफ्ज़ में वो ठहर कर देखते हैं कि यहाँ पे गुनाह होना है कि नहीं होना, फिर आगे देखते हैं गुनाह होना कि नहीं होना। वो प्रैक्टिस हो जाती है, बार बार हो जाती है। ऐसे ही समझे जैसे नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अब सूरह फातिहा हम लोग 5 नमाजें पढ़ते हैं रोजाना, 5 नमाजों में कई बार सूरह फातिहा पढ़ी जा रही होती है। अब क्या होता क्या है, बताओ, का ये होता है कि नमाज में जाके शामिल हो गए हैं और सूरह फातिहा की तरफ तवज्जो कोई नहीं होती हमारी कि हमने पढ़नी है, वो ज़बान पे खुद ब खुद जारी हो जाती है और पूरी सूरह फातिहा हम पढ़ छोड़ते हैं, हालांकि तवज्जो कोई नहीं की होती, तवज्जो कहीं और भी चली जाती है बताओ का। लेकिन सूरह फातिहा ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है कि सूरह फातिहा आधी पढ़े और तवज्जो कहीं और चली जाए। वो सूरह फातिहा खुद ब खुद मुकम्मल हो जाती है क्योंकि मशक कितनी की होती है। तो ये है उसमें मशक की कमी होती है, तो मशक बार बार करवाई जाए तो इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगा। कुरान जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ठीक होगा, बस यही तरीकाकार होता है। इंशाल्लाह जी उस्ताद में। दूसरी बात उस्ताद मोहतरम ये कि एक तालिबा है मेरी लाइव, तो सही यंग है, बंदा कहे कि ये बूढ़ी भी नहीं है, सही यंग है, लेकिन ज़ौद का मखरज उनसे सही नहीं निकलता कोशिश के बावजूद, और उन्हें अलग से यानी कि बाकायदा जैसे मैं उनकी करीब खड़े हो के भी साथ हो के भी बताया है कि ज़ुबान इस तरीके से यहाँ पे आपने लगानी है, लेकिन उसके बावजूद उनसे निकल नहीं रहा, ज़ौद सही नहीं अदा हो रहा। तो क्या वो होता ही होगा फिर कि वो हाफा लिसान के साथ साथ तरफे लिसान को या रासे लिसान को भी ऊपर दांतों की साल लगा रही होंगी। उनको जी ये बताया जाए कि जुबान की नोक जो है वो अगला हिस्सा जो है जुबान का वो नीचे रखना है और सिर्फ जुबान की करवट जो हाफा है उसके ऊपर उठाना है, उसके ऊपर उठाकर फिर उसके मुताबिक मशक करनी है। आमतौर पर होता यह है कि ज़ुआद की दहकी के वक्त ज़बान की नोक को ऊपर उठा दिया जाता है। जब ज़बान की नोक ऊपर उठाएंगे तो ज़ाहिर है वो ज़ुआद सही अदा नहीं होगा। तो ये खसूसी तौर पर ये होना चाहिए कि ज़बान की नोक जो है वो नीचे रखी जाए पूरे एहतमाम के साथ और करवट को ऊपर उठाया जाए और उसकी बार बार इस तरह जो है वो मशक करवाई जाए। तो जहाँ तक मुमकिन है आप उसकी मशक करवा दें, तो जितना आपसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की तौफीक से आपको उसका अजर मिल जाएगा जो आपने मेहनत की है, कोशिश की है। तो सबका ये भी रहता है, बाद लोगों की ज़बान भी ऐसी होती है ना कि वो कोशिश करने के बावजूद भी वो मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन उसका एक तरीकाकार जो ये है कि ज़बान उसका मखरज है वो सही अदा होना चाहिए कि ज़बान की नोक नीचे रहे और ज़बान की करवट जो है उसको ऊपर उठाया जाए और आराम आराम से एक हर्फ को मतलब है कि जल्दी ना पढ़ाया जाए, उसको जो है वो ठहर ठहर के पढ़ ले। वाला अगर जल्दी से करें बोला लीन पड़े
وہ نہیں پڑھ سکتے ہوتے نا. جیسے یہ نا مثلاً انعمت علیہم, اب نون جہاں پہ بعد میں حروف ہلکی آ رہے ہوتے ہیں وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نون عام طور پر ہل جاتا ہے. اس کو بار بار مشق کروائے جاتے ہیں کہ نون کو ہلانا نہیں ہے. انعمت اس کو پڑھے انعمت نہیں, وہ نہیں کر سکے گی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقفہ کرایا جائے. انعمت انعمت انعمت, ہم تو جلدی سے پڑھ لیں گے نا انعمت, تو وہ جلدی سے پڑھیں گے نا انعمت, نون کو ہلائیں گے. اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ تھوڑا سا وقفہ کروا لیں. انعمت انعمت, تو جوروفین ہارن وہ پڑھیں گے جوروفین ہارن, جوروفین کلکلا آ جائے گا. اب اس کا کیا طریقہ ہے, تھوڑا سا وقفہ کروائیں درمیان میں. جوروفین ہارن جوروفین ہارن, اب آسا سا وہ وقفہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جوروفین ہارن عذاب علیم پڑھ دیتے عذاب علیم عذاب علیم یا علیم. تو اس طرح یہ ہے ولو یا او, ضاد کی علیحدہ سے مشق کروائیں اور زبان کی نوک نیچے رکھوائیں. اگر وہ آپ آیات کے اندر اس کو ٹھیک کروائیں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا, اس کو علیحدہ سے ہی ٹھیک کروانا پڑے گا. اور پھر آیات کے اندر آ کر کلمات کے اندر بھی آ کر وہاں پہ تھوڑا سا اس کو وقفہ کروا کے ٹھہرا کے کہ اس طرح جو ہے آپ پوری توجہ دے کر ایسے جو ہے وہ پڑھے, تب جو ہے وہ آسا ٹھیک ہو جائے گا. ہم اس کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں مطلب جوروفین ہارن جوروفین ہارن جوروفین ہارن ایسے پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو طریقہ نہیں بتا رہے ہوتے. جب اس کو طریقہ بتایا جائے گا نا تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا اس کو کرنے کی. آپ گاڑی چلانے والے آپ کہیں سیدھی رکھو سیدھی رکھو, اب اس کو جو ہے وہ ایسے موڑو. اب اس کو بتانا ہے کہ بھائی سیدھی کیسے رکھنی ہے, اسٹیئرنگ کو کیسے آپ نے سنبھالنا ہے, بریک لگانی ہے آرام سے لگانی ہے جی, بریک آرام سے لگانی ہے نہیں, اس کو بتانا پڑے گا کہ بریک ایسے آرام سے لگانی ہے. صرف بتانے سے نہیں, پریکٹیکل کر کے اس کو کچھ طریقہ کار بتانا ہوگا, تب جا کر جو ہے نا یہ فائدہ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی اگر کوئی اور کوشچن سوال نہیں ہے پھر مجھے اجازت دیجیے. جی اگر کسی کا سوال ہے تو محترم قاری صاحب سے پوچھ لیں آپ, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس سیشن کو مکمل کرتے ہیں. جی الحمدللہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ترتیب جو بتائی گئی پڑھانے کی وہ بہت اچھی تھی. جی ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ ان سب باتوں سے, اور بہت زیادہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے ہمارے مسائل ہیں اور یہ سب ایک جگہ نا ہمیں بتائے جا رہے ہیں. بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ, ہمیں یہ فائدہ دیا اس ورک شاپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس قرآن کی تعلیم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے جو ہے ذریعہ نجات بنائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی تعلیم زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا